Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Hmm. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Okay. So this is our second lecture of water resource engineering. Okay. In the previous lecture, we discussed about the syllabus. Now we are coming into one of the module. That is the first module was your hydrology. So in this lecture, we will give some idea about the hydrologies. Okay, and I will give you the topics also. What we will learn after this lecture. Okay, so these are the topics that will be covered in this session. So first topic is that we will get idea about the hydrology, mainly the definition. Okay, it is also yesterday also I have discussed already this one, the definition, and comes the objective. Here we will go briefly. Okay, the second topic is catchment area. It is also discussed yesterday, same revision type. Okay, today the definition and characteristics. Third is hydrologic cycle. I think this is the most common. Everyone knows about this topic, hydrologic cycle. Okay. Here we will discuss in details. In your preliminary school days, we only know this is actually the water cycle like that only. But here we will discuss the details. That means what are the different components of the hydrologic cycles, what are the procedure, and what are the different aspects of the hydrologic cycle that we will learn today. Okay, and the last topic of this lecture is precipitations. Precipitation or rainfall. Okay, rainfall is actually part of the precipitation. It is actually the type, or we can say the form of precipitation. Precipitation doesn't mean only the raindrops. There are different forms of precipitation. Okay, that we will learn in this lecture. And the last topic under this is that types. See, these two are the different topics. One is the form. Form means in which form um, water from the atmosphere reaches the earth surface. Okay, whether it is in solid form, liquid form, whatever, that is the forms. And types is what? It is types of the, basically this is the types of rainfall. Okay, how many types of rainfalls are there and what are the reason of formation of such rainfalls, we will learn today. So let us discuss our first topic, that is what? Hydrology. As I already said, this is a Greek word which is derived from word hydor and logos. Hydor means water and logos means study. So here the name itself signifies that what we will learn from this hydrology, it is actually we are dealing with the study of the water. Okay, mainly study of the water, where this water will be present. These are the water either on the surface of the earth or below the surface of the earth. Okay, the water may be present above the surface, on the surface, or below the surface. Surface here means the ground level. Okay, so whatever forms of water that are present within these three region, that is the above, within the atmosphere, on the surface, and below the surface, we will study about this what to say, the water. Okay, we will study about the water present in these three conditions, or in these three, uh, on the atmosphere, on the surface, and below the surface. Okay, now before that, let us know about hydrosphere. Any idea what do you understand by hydrosphere? We have already in our school days also we have known about the, there are four mainly elements. What? Lithosphere, right? Atmosphere, hydrosphere, right? And biosphere. The earth composed of four sphere, that is what? Hydrosphere, lithosphere, biosphere, and atmosphere. Okay, now what is hydrosphere? Hydrosphere is, say for example, this is our earth, this green one. Okay, this is the full earth, and the green line, it signifies is that it is the earth's surface. Okay, we know that below the earth's surface there will be some forms of water present or stored inside the earth in forms of groundwater table, yeah, groundwater. Okay, in form of groundwater. And above the surface also, atmosphere may consist of
water also, okay, in form of vapor. So if we combine these two, this is what this depth is, how much it is taken as on average, okay, on average only, not the exact value, on average 1 kilometer below the earth's surface. Suppose this is your earth surface, then 1 kilometer below the earth surface we are considering one layer. The layer thickness is 1 kilometer below the earth surface, and another layer whose thickness is approx or on average 15 kilometer above the surface. Okay, if we combine these two, then that sphere that we are getting is the hydrosphere. So why hydrosphere? Because this sphere consists water. So now we will deal with this water. We will study the operation, the whatever water within which is operated within this hydrosphere. Okay, that may be, it may be vapor, it may be storage water, underground storage water, or it may be surface water. Okay, so whatever that water comes under this sphere, if we gonna study or analyze, that is taken care by the hydrology. So hydrology mainly deals with this water which is operated within the hydrosphere. Okay, clear? Okay. Yes, ma'am. So see here, the entire water on the earth's surface or below the earth's surface, okay, that is operated within this hydrosphere region, and hydrology deals with this operation only. Operation means what? See here, operation means occurrence, in which form that water is occurred in this, within this hydrosphere. Okay, we will study about it. Circulation means what? Like hydrologic cycle. That means they are moving from one state to another state in a cyclic condition. Okay, and distribution means, say for example, one reservoir is there, dam is there. Okay, so there are some storage of water. Now we have to distribute those water through canals. Okay, so everything that comes under hydrology only. So the hydrology deals with mainly occurrence, circulation, distribution of the water that are present within the hydrosphere. Now see here, what is the objective? Definition, it is over. Now comes objective. Objective of this hydrosphere or hydrology is to estimate the yield. Okay, now what do you mean by yield? Any idea? Sorry, okay. What do we mean by this yield? Yield is basically, we will estimate the quantity of or the volume of the water that is generated from the drainage basin. Now here, see here one term is there. What is drainage basin? Anyone can say, what do you understand by this drainage basin? I taught in yesterday's class also. What is the another name of this drainage basin? Ma'am, seepage. What is that area known as? There are technical terms, different technical terms. Good. It is also known as watershed. Okay. In different countries, it is named as watershed. Say for example, USA, UK, it is known as watershed. In other countries, it is known as catchment area. Okay, so there are different names, but meaning is same. So suppose this is that watershed. See, water is precipitation is occurring here. Now water is collecting from different region. Okay, within this area, the water is being collected at this area. Okay, now after this collection, what they are doing, they are converting or converging with the stream, river. Okay, and they are ultimately they are giving as an yield output at this region. See, at this region we are estimating the quantity of the volume that has been generated by this watershed. Okay, so objective of the hydrology is only to study this one only. Main one objective is this one, to
estimate how much water is yielded from a catchment area. So yesterday I taught you that catchment area is an area where some water has been collected, then after that they are transferring it to the stream and finally to the ocean or big rivers. Okay, so these are the different names. It can be known as catchment, catchment area, basin, drainage basin, river basin, whatever. Okay, see here. Now this is actually how it looks. The watershed should be bounded. It should have a boundary. Okay, and the boundary should always be at the higher level, higher elevations. See, the highest elevations forms the boundary. See, these are the highest elevation of that area. So these are forming the boundary of the watershed, and that region is known as either watershed boundary, or it is also known as divide, because it is dividing this catchment area from the other regions. So it is also known as watershed boundary or divide. Okay, so rainfall is occurring. So now they are collecting, transferring, and then they are merging with this stream, and finally they are coming out as a stream flow. Okay, so this is the stream flow. So this is the main composition of the watershed, how it looks. Now can anyone tell me, did you go through the notes or yesterday's notes or lecture? There was one more topic in the watershed, that is the characteristic features of the watershed. Okay, what are the different characteristic features of the watershed? Anyone can say? What are the different characteristic features, which the factors on which this amount of the water that is yielded from a watershed depends? What are the different factors? Exactly, area, how it is dependent, how the volume of the water is dependent on the area. এরিয়াটা যতটা বেশি হবে তত অ্যামাউন্ট অফ Exactly. রানঅফটা বেশি হবে। जितना ज्यादा एरिया होगा वो ज्यादा कलेक्ट करेगा, so the volume of water will be more. That is one. Okay, factor. What are the others factor? Anyone? Area is that. Okay, area, or we can area or size. Okay, what is the another factor? Intensity of rainfall. No, we are talking about the watershed factors, characteristics of the watershed, not the precipitation characteristics. Okay, see, thus it also depends on the shape of the catchment area. If it is very long, it has a very long shape, lengthy, elongated shape. Okay, then what happens? Speed will be affected, right? Speed at which this river is flowing, it will be affected. Okay, because it has to travel longer distance, so it will take longer time, and hence the speed will be reduced slowly. Whereas if it is of like this shape, fan shape, okay, then what happens? The distance is very less, so it will take less time to reach here, so it will flow very in a high speed. Okay, so this is one topic, or this is one characteristic. This is the shape. Another is your size and the nature of the soil also. As I already said, if this watershed consists of some impermeable soil, then what happens? All water will will be considered as a runoff. They will not penetrate inside the soil. Okay, so because the soil is impermeable, they cannot absorb water. Then what happens? All the water will be running as a runoff only, I mean surface runoff. So more volume of water will be yielded from this point. So यहाँ से अगर बहुत सारा पानी एज अ रन ऑफ कलेक्ट हो रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? पानी बहना स्टार्ट करके यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इट विल जनरेट. ओके, अगर ये परमिएबल है जैसे सैंडी सॉइल ऐसा है, तो
मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द कैचमेंट इटसेल्फ, तो ये पानी में कंट्रीब्यूशन उसका कम रहेगा, सो यहाँ पे वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. ओके. And the another important is the topography also. मतलब अगर ये जो बाउंड्री है उसका एलिवेशन बहुत ज्यादा है, आई मीन स्टीप साइज का है, ठीक है, स्टीपर साइज का है, तो क्या हो जाएगा, स्टीपर हाइट का है, तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा पानी कलेक्ट होने का चांसेस रहेगा. अगर फ्लैट में ज्यादा पानी रहता है या कि स्टीपर में ज्यादा पानी रहेगा, बोलो किसमें पानी ज्यादा रहने का मतलब कलेक्ट करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा, स्टीपर वाला में या जो फ्लैट है एरिया है उसमें? स्टीप में मैम. ऑब्वियसली स्टीपर में. ठीक है, तो उससे भी तुम्हारा क्या हो जाता है, उससे भी वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, उससे भी तुम्हारा स्पीड ऑफ द फ्लो विल बी greater than compared to the less steeper area. Okay, so all these are the topics. See, size, topography, shape, soil type. Okay, and the last one is land use. As I already say, अगर ये forest area है तो क्या होगा, तब भी वो ज्यादा absorb करेगा. अगर ये मतलब urban area है, मतलब वहाँ पे रास्ता वास्ता कंस्ट्रक्ट हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो क्या है, मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय द कंक्रीट, तो कंक्रीट इज अगेन इम्परमिएबल, तो वो लेगा नहीं, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम फिर से बढ़ जाएगा, जो भी है इट विल कंसिडर एज अ फ्लड, मतलब कंट्रीब्यूट कर देगा, फ्लड ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा रहेगा. फ्लड कब ज्यादा होगा, जब ये रन ऑफ ज्यादा होगा. Okay, this is also discussed. Now these are the hydrological application. ठीक है, so there are different hydrological application. जैसे है कि तुम्हारा वियर, डैम्स, बैरेज कंस्ट्रक्शन करने में, उसका डिजाइन करने में ये हेल्पफुल है. ठीक है, उसमें वी कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ हाइड्रोलॉजी. ठीक है, अर्बन सिविल तुम्हारा जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रेनेज सिस्टम का जो डिजाइन है उसमें भी इट इज हेल्पफुल. फ्लड फोरकास्टिंग ऑफ द फ्लड, ठीक है, उसमें भी ये हेल्पफुल है, कितना फ्लड हो सकता है, कौन से ईयर में ज्यादा है, ये सब कैलकुलेट करने में भी ये हाइड्रोलॉजी का नॉलेज हेल्पफुल है. इरिगेशन में है. ठीक है, सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो मल्टीपर्पज जो है हम लोग का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, आई मीन जो जहाँ से हाइड्रो पावर जनरेट होता है, ठीक है, तो उसमें भी ये सब नॉलेज एप्लीकेबल हो सकता है. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलॉजी. तो ये फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक था हाइड्रोलॉजी के अंदर, उसका डेफिनेशन एंड डिफरेंट व्हाट टू से ऑब्जेक्टिव, ये खत्म हुआ. कैचमेंट एरिया का भी ये खत्म हो गया है, हाइड्रोलॉजी का एप्लीकेशन भी खत्म हो गया है. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल. इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है. ओके, नाउ हाइड्रोलॉजिक साइकिल कुछ नहीं है, एक साइक्लिक प्रोसेस है विच उसमें क्या होता है, इट इज एक्चुअली द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द वाटर. वाटर में बी इन एनी फॉर्म, वाटर मतलब सिर्फ वो लिक्विड फॉर्म में ही मूवमेंट हो रहा है वैसा नहीं है, इट मे बी इन एनी फॉर्म, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, कुछ में भी अगर होगा मूवमेंट हो रहा है इन अ साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिक साइकिल. तो मेन क्या है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम एटमोस्फियर टू द अर्थ सरफेस, बारिश होके मतलब इन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन यहाँ पे अर्थ में आ गया, अर्थ सरफेस में. ठीक है, अर्थ सरफेस में ये इन फॉर्म्स ऑफ रन ऑफ, मतलब सरफेस के ऊपर फ्लो हो सकता है, या इन फॉर्म्स ऑफ जो अंदर मतलब इनफिल्ट्रेट हो है, कुछ कुछ वाटर रन ऑफ में हो रहा है, कुछ कुछ इनफिल्ट्रेट हो रहा है, मतलब अंदर सॉइल एब्जॉर्ब कर रहा है. और वो वाटर कहाँ जाएगा, जाके वो अल्टीमेटली ऐड हो जा रहा है तुम्हारा ग्राउंड वाटर में. तो ग्राउंड वाटर भी फ्लो होता है, वो ऐसे स्टैटिक नहीं रहता, वो भी फ्लो होता है. ठीक है, तो as a surface runoff and as well as the subsurface, that is the ground water flow होके फिर से कहाँ पे चला जाएगा, वो surface runoff होके वो फिर से नदी में या तुम्हारा समुद्र में जाके मिल जाएगा वो पानी फिर से. ठीक है, अब लार्ज बॉडी वाटर बॉडीज में वो मिल जा रहा है, अब फिर से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लार्ज वाटर ड्यू टू सोलर एनर्जी हीट हो रहा है, हीट अप हो रहा है, उससे इवापोरेशन होगा, वेपराइज हो जाएगा, फिर वो ऊपर एटमॉस्फेयर में आएगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर बारिश होगा, वही रिपीटेटिव वे में होता रहेगा. ठीक है, ये भी यही है, एक बच्चा मतलब ये किड्स की तरह एक्सप्लेन किया है. कंडेंसेशन होगा, बारिश होगा, फिर कलेक्शन होगा, फिर इवापोरेशन होगा, वही प्रोसेस इन साइक्लिक मोशन. ओके, and this is not only in form of rainfall or water or liquid, it will be, ये वाटर है तुम्हारा क्या, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म. ओके,
सो ये है मेन फंडा, यही है। अगर इसको हम लोग, ये तो कल भी बोल दिए थे, देखो ये तुम्हारा क्या है, पहले गर्म हो गया, गर्म होने से इवापोरेशन हो रहा है, सरफेस से वाटर से या ओशन से इवापोरेट हो रहा है, वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, ये कंडेंसेशन हो रहा है, फिर बारिश फॉर्म हो रहा है, फिर से आ रहा है कुछ तुम्हारा रन ऑफ होके समुद्र में फिर से ऐड हो रहा है, या कुछ फिर से इनफिल्ट्रेट हो रहा है, सॉइल के अंदर से इनफिल्ट्रेट होके यहाँ पे जो भी ग्राउंड वाटर है वो भी उसके साथ मर्ज होके फिर फ्लो होके फिर से ये एड अप हो जा रहा है यहाँ पे एज अ सब सरफेस फ्लो एड अप हो जा रहा है। तो फिर वही हो रहा है प्रोसेस। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। लेकिन अब आते हैं कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये वो लोग तो तुम पहले भी सोशल स्टडीज बोलो उसमें पढ़ चुके हैं, ये सब साइंस वाइंस में पढ़ चुके हो। अब आता है इंजीनियरिंग में सिर्फ इतना नहीं रहता है, अब आता है कि इसमें डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, हम बोल रहे थे फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। जैसे कि तुम लोग कौन कौन सा वर्ड ऑलरेडी सुन चुके हो, इवापोरेशन, यू हैव ऑलरेडी heard about it, और तुमको पता भी है कि क्या होता है इवापोरेशन, इट इज मेनली द चेंज ऑफ स्टेट। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी।
হ্যালো, এখন কি ক্লাস হবে? জানিস কেউ? আরে ম্যামের নেটওয়ার্ক চলে গেছে মনে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাম রিপ্লাই দিচ্ছে না হোয়াটসঅ্যাপে, অফলাইন আছে। ক্লাস কি আর হবে? কন্টিনিউ হবে? কেউ জানিস কিছু? কি করে বলবো ভাই বলতো? সবাই অন আছে কেন? তোরা কি লিভ করবি? কালকে ম্যাম এরকম হয়েছিল, তারপর আবার চলে আসছিল তো। তো এখন যদি হুট করে চলে আসে তখন? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ওয়েট কর, ওয়েট কর, ওয়েট এই কর। বলছি বলছি কেউ একজন ফোন কর না ম্যামকে। তনুশ্রী কর, তনুশ্রী ফোন কর। হোয়াটসঅ্যাপ কর না, ম্যাম তো অনলাইন থাকলে হোয়াটসঅ্যাপে রিপ্লাই দেবে। হোয়াটসঅ্যাপ করেছি রে, ম্যাম অফলাইন আছে। মেসেজ চলে গেছে, তাহলে ম্যাম আর- অফলাइन আছে। मैम बोल তাহলে रही ম্যাম हैं ম্যাম वेट करो, आ বললো रही। কখন বন্ধ अरे হলো मैम बोल रही वेट ক্লাসটা। करो। मैम ম্যামের बोल रही নেট वेट প্যাক শেষ करो, आ হয়ে रही। গেছে মনে হচ্ছে। ম্যাম টেক্সট করে বললো কখন বন্ধ হলো ক্লাস। ও তাহলে এক্ষুনি ম্যাম বললাম, ম্যাম নিজেও বুঝতে পারেনি কখন অফ হয়ে গেছে। अरे मैम बोल रही वेट करो। ম্যাম মেবি ওয়াইফাই তে ক্লাস নেয়, মেবি হয়তো ওয়াইফাই অফ হয়ে গেছে তখন বুঝতে পারেনি। হ্যাঁ, ওয়েট করতে বলেছে ম্যাম।
হ্যালো, শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ ম্যাম শোনা যাচ্ছে। ইয়েস ম্যাম শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে। ম্যাম শোনা যাচ্ছে। সরি সরি, আমি তো বুঝতে পারিনি, এটা একটা প্রবলেম। আচ্ছা, কোথায় ছিলাম বেশ আমি? कहाँ पे थे ম্যাম हम? ওই আপনি বলছিলেন যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেক্টিভ থেকে যেটা ওইটা হয় সেই अच्छा 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 ছবিটা আপনি বোঝাচ্ছেন। अच्छा अच्छा। दिख रहा है तुम सबको? यस मैम। ओके Yes, सॉरी। ma'am. So I was discussing the different components of the hydrologic cycle. Okay, first फर्स्ट क्या है हाइड्रोलॉजिक साइकिल का? फर्स्ट कंपोनेंट इज इवापोरेशन। तुम्हारा समुद्र जो भी है, ओशियन है, उसका वाटर हीट होके इवापोरेट होगा, ठीक है, दैट इज इवापोरेशन फ्रॉम ओशियन और एनी रिवर बॉडीज। ओके, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? कंडेंसेशन हो जाएगा। होने के बाद जो भी कंडेंस होके जितना भी क्लाउड या प्रेसिपिटेशन जमा हो गया है, ठीक है, वो पूरा का पूरा ओशन में फिर से वापस नहीं आएगा एज अ प्रेसिपिटेशन, फिर से रेनफॉल होके वो ओशन में नहीं जाएगा। उसका सिर्फ 74% ही तुम्हारा ओशन के नीचे के ऊपर गिरेगा एज अ प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। रिमेनिंग 26% देखो क्लाउड फॉर्म हुआ, वो ट्रांसफर हो जाएगा, जाएगा कहाँ पे? लैंड में। रिमेनिंग 26% विल फॉल एज प्रेसिपिटेशन ऑन दी लैंड, ठीक है। अब उसमें से जो 26% है, उसमें से कुछ कुछ जो ड्रॉप्स है, छोटा छोटा डाया का ड्रॉप्स, वो क्या हो जाएगा? वो ऊपर आकाश में ही इवापोरेट होके फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेन ड्रॉप इवापोरेशन, ठीक है। मतलब वो एटमॉस्फेयर से ही इवापोरेट हो रहा है, वो सरफेस में भी पहुंच नहीं रहा है, किसी बिल्डिंग या किसी ट्री में भी वो अटक नहीं जा रहा है, वो डायरेक्ट तुम्हारा कहाँ हो रहा है? आकाश, मतलब एटमॉस्फेयर में ही इवापोरेट हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? उसमें से जो जो फिर से रेनफॉल ड्रॉप्स जितना भी मतलब इवेपोरेट नहीं होके नीचे आ रहा है, उसमें से कुछ ट्रीज बोलो या कोई स्ट्रक्चर बोलो, उसमें जाके अटक जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। मतलब देखो ये बारिश हो रहा है, जो भी 26% रेनफॉल हुआ था, उसका सबका सब तुम्हारा ग्राउंड सरफेस में रीच नहीं किया है, कुछ पोर्शन इट इज इंटरसेप्टेड बाय द स्ट्रक्चर और फॉरेस्टेशन और ट्रीज, उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। मतलब वो यहीं से ही डायरेक्ट फिर इवापोरेट होके ऊपर चला जाएगा, मतलब वो ग्राउंड में आएगा ही नहीं, ठीक है। उसमें से सिर्फ कुछ कुछ पोर्शन ही ग्राउंड में नीचे आएगा, और बाकी वो डायरेक्ट इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में फिर से चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनिशियल लॉस और इंटरसेप्शन, ठीक है। इंटरसेप्शन को हम लोग इनिशियल लॉस भी बोल सकते हैं। लॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट इज नॉट कमिंग ऑन द अर्थ सरफेस, वो ऊपर से ही हवा हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा है, जो भी अब नीचे ग्राउंड में रीच किया है, वो डायरेक्ट इट विल नॉट इंक्लूड एज अ, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट एज अ रन ऑफ। जो नीचे जमीन में आया है, उसका कुछ पोर्शन अगेन इट विल इनफिल्ट्रेट इनसाइड द ग्राउंड सरफेस। इनफिल्ट्रेट मतलब क्या है कि तुम्हारा सॉइल स्ट्रक्चर है, सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर वॉइड्स भी है, सॉलिड पार्टिकल्स भी है, जो भी वॉइड्स है मतलब वो खाली है, तो उसको फिलअप करेगा कौन? ये वाटर, ठीक है। जो वाटर पेनिट्रेट होके नीचे आ रहा है उसको फिल अप कर देगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन इज एक्चुअली नॉट द एब्जॉर्प्शन, ओके। एब्जॉर्प्शन मतलब है कि सिर्फ सोख के अपने पास ही रख दिया। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है कि वो नीचे जाएगा, मूवमेंट होगा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर, ओके। सो ये इनफिल्ट्रेट हो रहा है। सो सपोज दिस इज द इनफिल्ट्रेशन। देखो कुछ पोर्शन इनफिल्ट्रेट होगा, जब ये पूरा इसका सॉइल का जो भी वॉइड पार्टिकल्स है, वॉइड एरिया है, वो अगर फिल अप हो जाएगा और वो इनफिल और एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तब जाके तुम्हारा रन ऑफ जनरेट होता है, तब जाके वो स्टोर होना स्टार्ट करेगा एंड इट विल जनरेट एज अ रन ऑफ, मतलब वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा सरफेस के ऊपर। ये तब तक नहीं होगा, रन ऑफ जनरेट नहीं होगा, जब तक ये पूरा मॉइस्चर जो भी है वॉइड्स है फिल अप ना हो जाए। क्लियर? রেসপন্স Yes, ma'am. করবে, নাহলে বুঝতে পারবো না আবার। হ্যালো,
हाँ मैम। अच्छा अच्छा, मैम ठीक है। अब जो इनफिल्ट्रेट हो रहा है वो जाएगा कहाँ? इनफिल्ट्रेट, एज आई सेड, इट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन डाउनवर्ड मोशन, ओके। तो वो नीचे जाएगा ऑब्वियसली। अब नीचे जाके क्या हो जाएगा? इट विल मर्ज विद द ग्राउंड वाटर। जो भी ग्राउंड वाटर है, मतलब ग्राउंड के नीचे भी वाटर है, ठीक है, तो उसमें जाके वो मर्ज होके क्या हो जाएगा? देन इट विल स्टार्ट टू फ्लो एज अ ग्राउंड वाटर फ्लो, ओके। सो द ग्राउंड वाटर फ्लो होके वो फिर से अंदर ही अंदर फ्लो करके यहाँ से फिर निकलना स्टार्ट करेगा। मतलब जैसे कि ये देखो, ग्राउंड फ्लो होके ये फिर से ओशन में एड अप हो जाएगा, पूरा का पूरा नहीं, कुछ, ठीक है। सो दैट इज द ग्राउंड वाटर, जैसे ये है ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन क्या है? दूसरा ये है तुम्हारा, अब जो भी तुम्हारा इनफिल्ट्रेट हो चुका है, अब भर्ती हो चुका है, तो रिमेनिंग इट विल कंट्रीब्यूट एज अ रन ऑफ। ये जो 6 नंबर पॉइंट है देखो, एज अ रन ऑफ जाके वो कहाँ पे एड अप हो जाएगा? आके वो आइदर स्टोर हो जाएगा, तुम्हारा डिप्रेशन जो भी है या रिवर जो भी है उसमें स्टोर हो जाएगा, या वो फिर से जाके समुद्र में एड अप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से दिस प्रोसेस विल अगेन हैपन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोसाइकिल, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजी मतलब वाटर से ही वाटर मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए हाइड्रोलॉजिक, ठीक है। So this is the raindrop evaporation, interception, initial loss, transpiration. इवापोरेशन फ्रॉम लैंड से भी होता है कभी कभार, सरफेस बॉडी वाटर बॉडी से सिर्फ नहीं होता है, ये फ्रॉम ओशियन और वाटर बॉडीज है। दिस आर द रन ऑफ, ठीक है। ये इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर एंड डीप पर्कुलेशन। डीप पर्कुलेशन मतलब कि और नीचे जाके वो फिर से मतलब और नीचे पेनिट्रेट होगा और नीचे इनफिल्ट्रेट होता जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीप पर्कुलेशन। अब आता है कि एस्पेक्ट्स, मतलब जो भी तुम्हारा ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, ये 3 एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है या मतलब काम कर रहा है। 3 एस्पेक्ट्स के अंदर क्या क्या है? एक है कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब वाटर का मूवमेंट हो रहा है। वाटर इन एनी फॉर्म इट इज इन मूवमेंट कंडीशन, राइट, इट इज इन मोशन, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जैसे प्रेसिपिटेशन, इट्स ऑल्सो इन मोशन। इवापोरेशन मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रांसपिरेशन रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन नीचे जा रहा है, रन ऑफ हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा है स्टोरेज भी हो जाएगा, मतलब जो तुम्हारा रिवर, पॉन्ड्स, रिजर्वर है उसमें स्टोर है तो उसको बोलते हैं लैंड स्टोरेज। जो मॉइस्चर कंटेन, मॉइस्चर के अंदर आई मीन सॉइल के अंदर जो वॉइड्स है उसमें जाके स्टोर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज, ठीक है। और जो ग्राउंड वाटर में जाके स्टोर हो जा रहा है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टोरेज, ग्राउंड वाटर स्टोरेज। सो दिस आर द टेम्पोररी स्टोरेज, मतलब ये भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, और दूसरा क्या है? चेंज ऑफ स्टेट तो हो ही रहा है, नहीं तो कैसे होगा? मतलब प्रेसिपिटेशन में भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, इवेपोरेशन में लिक्विड से सॉलिड में गैसियस में जा रहा है। तो ऑल दिस आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल। मतलब हाइड्रोलॉजिक साइकिल कंप्लीट होने के लिए ये 3 एस्पेक्ट होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ में होता ही रहेगा, ठीक है। एक या एक से 2 होता ही रहेगा, या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होगा, या सिर्फ टेम्पोररी स्टोरेज होगा, या सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट होगा, या 3 तो एक साथ भी हो सकता है, या दोनों एक साथ भी हो सकता है। ऐसा ऐसा कंडीशन, जैसे प्रेसिपिटेशन में तुम्हारा देखो ट्रांसपोर्टेशन एंड चेंज ऑफ स्टेट हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर? मैम ওই ট্রান্সপিরেশনটা একবার বলবেন? अच्छा, ट्रांसपिरेशन इज नथिंग, सी वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉइल रूट है ना, सॉइल का जो भी डेप्थ है, रूट जोन जिसको बोलते हैं, उसमें जो वाटर मतलब वॉइड पार्टिकल्स था, ठीक है, उसमें वाटर स्टोर हो जा रहा है, ठीक है, सॉइल वाटर, सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज की तरह। अब रूट्स क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब जो भी वाटर से आसपास से एब्जॉर्ब करके वो प्लांट्स के जो भी स्टेम होगा अपना फोटोसिंथेसिस में काम करेगा, वो जो कर रहा है, करने के बाद लीफ में जाके छोटा छोटा होल्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है, वहां से वो वेपराइज हो जा रहा है, वो लिक्विड वेपराइज हो रहा है, ठीक है। मतलब कि वो पूरा प्लांट अपने लिए ग्रोथ के लिए तो यूज कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो एक्सेस हो जा रहा है वो तुम्हारा कहाँ पे जा रहा है? लीफ के थ्रू इवापोरेशन हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब एक लैंड से इवापोरेशन हो रहा है, एक प्लांट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो दोनों का मिलाकर अगर बोलेंगे तो इवापो ट्रांसपिरेशन। क्लियर? ওকে दीज आर व्हाट? Yes. दीज आर
वी कैन से Yes, दीज आर ma'am. द लॉसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। लॉस मतलब क्या है, मेन फंडा क्या है तुम्हारा, मेन फंडा है कि प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, कैचमेंट एरिया में कलेक्ट होगा, ठीक है। अब उसमें से कुछ तुम्हारा लॉस हो जाएगा, मतलब जो भी पानी आ रहा है सबका सब तुम्हारा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, रिवर में ऐड नहीं होगा या ओशन में ऐड नहीं होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हुआ, कैचमेंट एरिया में कलेक्ट होके कुछ लॉसेस हो जाएगा। लॉसेस आर दिस इंटरसेप्शन, दिस ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, ये सब है लॉसेस। इनफिल्ट्रेशन, ये सब लॉस है, ठीक है। अब उसमें से जो भी तुम्हारा ऐड हो जाएगा ओशियन में, दैट इज द रन ऑफ। ओके, सो दिस इज द मेन फंडा, मतलब आर। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक is the precipitation. Okay, a precipitation is mainly what, is the किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म, ठीक है, नॉट ओनली द इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, किसी भी फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर से अगर अर्थ में रीच कर रहा है वाटर, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो मेन डेफिनेशन यही है, any form of water which reaches the earth surface from the atmosphere is the precipitation, is known as precipitation. अब आते हैं तुम्हारा क्या, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। बहुत सारा टाइप्स है, ठीक है, उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट ही तुमको एक्सप्लेन करेंगे। मेन तो है क्या क्या है, कोई बोल सकता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, किस किस फॉर्म में वो पानी, रेनफॉल, स्नोफॉल, हाँ गुड, रेनफॉल, स्नोफॉल, और जो इधर कभी कभी हो जाता है, हाँ हाँ, आइस फॉल, आइस फॉल, उसको आइस फॉल नहीं बोलते हैं, यू आर करेक्ट, बट दैट इज नॉट द आइस फॉल, ओके, दैट इज कॉल्ड हेल। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट द टर्म हेल, HAIL, हेल, मतलब सीला, सीला बृष्टि जेटा बोले, मतलब जो बोलते तुम लोग सीला बृष्टि, ठीक है, हेल उसको बोलते हैं। अब रेनफॉल बहुत टाइम पे देखना हल्का हल्का बूंद आता है, ठीक है, मतलब पूरा जोर जोर से नहीं होता है, छोटा छोटा ड्रॉप्स ऐसे रेनफॉल की तरफ गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रिजल, दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अनदर है सुबह सुबह जो फॉग होता है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और दूसरा जो है जो तुम्हारा ड्यू, ठीक है, ड्यू को भी हम लोग इन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं। अब इन सब में डिफरेंस क्या है, अब ये सब तो तुम्हारा नाम सिर्फ एक्सप्लेन हो गया, अब आते हैं डिफरेंस में। अब डिफरेंस के लिए वी शुड नो द स्पेसिफिकेशंस, कि इसका साइज कितना है, इसका इंटेंसिटी कितना है, तब हम उसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, बोलेंगे, ठीक है। तो मेनली हम लोग का देखो फर्स्ट में आता है तुम्हारा रेनफॉल, जो तुम लोग देखते रहते हो, रेनफॉल, ठीक है। ये जो ड्रॉपलेट साइज है देखो, इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5 mm, ग्रेटर देन 0.5 mm होना चाहिए, उससे कम अगर होगा तो वो दूसरा फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। एंड इंटेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1 mm पर आवर। अब ये 1 mm के ऊपर ही होना चाहिए, 1 mm पर आवर के ऊपर ही, जिस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या है कि पर टाइम में कितना mm रेनफॉल हुआ, कितना mm का वाटर गिर रहा है पर, अगर तुम एक बाटी लेकर बैठोगे यहाँ पे, ठीक है, 1 घंटे के लिए, और उतना mm वहां पे जम गया, पानी कलेक्ट कर दिया, ठीक है, तुम डेप्थ मेजर करोगे और उसको जितना टाइम के लिए तुम रखे थे उसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट दैट इंटेंसिटी, मतलब 1 घंटा या टाइम में, पर टाइम में कितना डेप्थ ऊपर से बारिश हुआ है, दैट इज द इंटेंसिटी, ओके। तो बोला है अगर 1 घंटे में 1 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, अगर मतलब वो रेनफॉल फॉर्म प्रेसिपिटेशन आ रहा है, मतलब दैट इज द रेनफॉल। और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइट है, मॉडरेट है, ऑब्वियसली ज्यादा अगर आ रहा है मतलब वो हेवी होगा, थोड़ा मॉडरेट होगा और लाइट होगा, ठीक है। दिस इज द ड्रिजल, हम यहाँ अच्छा पिक्चर नहीं मिला हमको, लेकिन ये जो बूंद बूंद गिर रहा है, ठीक है, छोटा छोटा सा बूंद गिर रहा है वाटर सरफेस के ऊपर, दैट इज ड्रिजल। अब देखो ड्रिजल को कब बोलेंगे, वो जो पहले था तुम्हारा क्या था, रेनफॉल का साइज शुड बी ग्रेटर देन 0.5 mm, मतलब अगर कोई ड्रॉपलेट साइज आएगा ऐसा, अगर ड्रॉप, सपोज दिस इज द रेन ड्रॉप, ठीक है, तो बोला है कि इसका साइज शुड बी ग्रेटर देन 0.5 mm, देन हम बोलेंगे ये रेन ड्रॉप है, रेनफॉल है। अगर इसका लेस देन और छोटा साइज का अगर रेनफॉल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रिजल, जिसका डायमीटर कितना बोला, साइज बोला है 0.5 mm,
और इंटेंसिटी देखो हल्का है एकदम, 1 mm पर आवर, मतलब बहुत कम पानी जमेगा। अगर तुम उसको 1 घंटे के लिए रख दोगे तो कोई रेनगॉज स्टेशन अगर रख दोगे तो बहुत कम mm का वाटर तुमको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द ड्रीजल। नेक्स्ट इज द स्नो, ठीक है। स्नो को हम बोलेंगे कब, जब उसका, दिस इज एक्चुअली नॉट द रेन ड्रॉप, दिस आर द क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल। वो ड्रीजल और रेन क्या था, वो लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। नाउ दिस इज इन सॉलिड, दिस मीन दिस इज इन क्रिस्टल फॉर्म। तो उसका क्रिस्टल का साइज जब 1 mm से छोटा होगा तो उसको बोलेंगे स्नो। और डेंसिटी कितना होना चाहिए, 0.1 ग्राम पर सीसी, इतना डेंसिटी होना चाहिए, तब उसको हम इट विल कैटेगराइज एज अ स्नो, ठीक है। दूसरा है ग्लेज। अब ये ग्लेज क्या होता है, ग्लेज होता है कि सपोज ड्रीजल हो रहा है, ठीक है। अभी ये हम लोग का ट्रॉपिकल रीजन के लिए नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो एकदम नॉर्थ पोल ऐसा जैसा है, मतलब ठंडा इलाका, एंटार्क्टिक जैसा है, ठीक है, ठंडा इलाका जहाँ पे, अगर वहां पे कभी बारिश हुआ है, मतलब वहां पे बहुत फ्रीजिंग कंडीशन है, एटमोस्फियर या नीचे का ग्राउंड सरफेस इट इज इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या उससे भी कम। तो 0 डिग्री में क्या होता है, पानी, व्हाट हैपेंस टू वाटर, জমে যায়, বরফ হয়ে যায়, हाँ वो বরফ जम হয়ে जाता যায়। है, ठीक है। ऊपर से तो इट इज फॉलिंग एज अ ड्रीजल या रेन की हिसाब से, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में ऊपर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन जमीन में जाकर ही, क्योंकि जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जाकर ही वहां पे क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। दैट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड ग्लेज। जैसे कि ये वाला देखो, ठीक है, ये ठंडा था इसीलिए यहाँ पे आके वो फ्रीज हो गया, पहले पानी ম্যাম आ ওটা रहा था। সারফেস এসে জমে যাচ্ছে নাকি সারফেস অ্যাটমসফিয়ারের সারফেস মধ্যেই পড়তে না পড়তে? না সারফেসে, ঠিক আছে। এবার ওকে ম্যাম, অ্যাটমসফিয়ারে যেটা হচ্ছে সেটা আলাদা জিনিস এবার, ঠিক আছে। ওকে ওকে। সো দিস ইজ কল্ড ফ্রিজিং রেন অর গ্লেজ, ওকে। এবার দিস ইজ ইয়োর দ্যাট ওয়ান স্লেট, তুমি যেটা বলছিলে, যেটা বলছো অ্যাটমসফিয়ারে জমে আসছে, ঠিক আছে। দিস আর দ্য ফ্রোজেন রেন ড্রপস, স্লিট। আমরা যে হেল বলি না, হেল মানে শিলাবৃষ্টি বলি না, সেরকমই टाइपर, वैसा ही टाइप का है, मतलब ऊपर से बर्फ होके गिर रहा है, लेकिन उसका डायमेंशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। इट विल बी इन लेसर डायमीटर, उसका ड्रॉपलेट का साइज या जो भी होगा, वो फ्रोजन रेनड्रॉप्स का साइज इट विल बी लेसर देन द हेल। कितना होगा, देखो 1 mm टू 5 mm। अगर ये लेस देन 1 mm होगा तो क्या हो जाना चाहिए था, वो जो आइस क्रिस्टल गिर रहा है, जो आइस गिर रहा है, अगर उसका साइज, क्रिस्टल साइज इज लेस देन 1 mm, तो वो उसको क्या स्नो बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली स्नो, स्नोफॉल स्नोफॉल, तब स्नोफॉल। अब उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज योर स्लीट, ओके। अब उससे भी और बड़ा आएगा तब तुम्हारा हो जाएगा हेल, जो कि ऐसा है, ठीक है। अब स्नोफॉल और हेल में डिफरेंस यही है कि ये डायमीटर इसका ज्यादा बड़ा है, साइज बड़ा है, एंड व्हाट डेंसिटी, ये बहुत ज्यादा डेंस है। स्नोफॉल का क्या था, 0.1 mm था, 0.1 ग्राम पर सीसी था, और इसका डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सीसी। और साइज भी देखो 5 mm से 50 mm तक हो सकता है, बड़ा है, मतलब 50 mm मतलब समझा है कितना है, मतलब 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है साइज, इतना बड़ा बड़ा। सो दिस इज द हेल। सो दिस आर नोन एज इरेगुलर पैलेट्स और लम्प्स ऑफ आइस। तो जो भी है ऊपर से ही तो आ रहा है, हम बोले थे एनी फॉर्म ऑफ वाटर विच कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द सरफेस, तो ऊपर से ही नीचे सरफेस, अर्थ सरफेस में आ रहा है ये एवरीथिंग। तो इसीलिए इसको फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ओनली इसका स्पेसिफिकेशंस अलग है बोल के ये नाम अलग अलग दे दिया है, ठीक है। और ड्यू क्या है, ड्यू होता है तुम्हारा क्या, जो भी सुबह दिन में जो भी वेपर हो रहा है, गर्मी की वजह से क्या हो रहा है, जो भी सरफेस से इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, ओशन से इवापोरेशन, जो भी इवापोरेशन हो रहा है, रात में टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से कंडेंस होके क्या हो जा रहा है, वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता है, वो पानी का ड्रॉपलेट ऊपर तक नहीं गया है, मतलब कम एल्टीट्यूड तक ही गया होगा, ठीक है। फिर ठंडा वेदर हो रात में क्या हो जा रहा है, कूलिंग कंडीशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो वो नीचे ही जमना स्टार्ट हो जा रहा है। एंड सुबह उठ के देखेंगे हम लोग क्या, लीव्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो चुका है, दैट इज द ड्यू। वो ज्यादा ऊपर तक नहीं गया, बट इट इज ऑल्सो अगेन कुछ एल्टीट्यूड तक जाके फिर मतलब वो फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द ड्यू, ओके। तो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में ये सब इंपॉर्टेंट है,
क्लियर सब में? रेन ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? ड्रीजल और रेन दोनों ही रेन मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स है, लेकिन साइज में डिफरेंस है। स्नो, स्लीट और तुम्हारा हेल, तीनों ही क्रिस्टल फॉर्म मतलब ऊपर से बर्फ होकर ही आ रहा है, लेकिन अगेन साइज और डेंसिटी में डिफरेंस है तीनों में। और ड्यू क्या है, वो थोड़ा एटमोस मतलब सरफेस के थोड़ा आसपास में ही वो फॉर्म हो रहा है, ऊपर जाके फॉर्म नहीं हो रहा है, सरफेस ग्राउंड से थोड़ा कम एल्टीट्यूड में वो फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ड्यू। अब लास्ट टॉपिक क्या था? फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड द लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। कोई बोल सकता है कितना टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है? अब ये रेनफॉल है, ये वाला रेनफॉल है, ठीक है। स्नोफॉल, हेल हम कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मतलब है रेनफॉल। तो ये कन्वेक्शन एक फर्स्ट रेनफॉल है, हो ना सब? आछो तो तुमरा हेलो। हाँ हाँ मैम। यस मैम। हाँ, तो कन्वेक्शन रेनफॉल किसको बोलेंगे? তোমরা পড়েছো कंडक्शन कन्वेक्शन পড়েছো निश्चय फिजिक्स है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, क्या है कि इट हैपेंस ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अनइक्वल हीटिंग मतलब कि अब कोलकाता तो बहुत बड़ा एरिया है, कोलकाता के कुछ हिस्से में ज्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है, और कोलकाता के कुछ हिस्से में कम गर्म हो रहा है, ठीक है। तो जिस हिस्से में ज्यादा गर्म हो रहा है, सपोज दिस वन हॉट सरफेस, ये जो है हॉट सरफेस, इस हिस्से में ज्यादा हीट अप हो रहा है, तो वहां का जो सराउंडिंग एयर है, इसके नीचे जो भी एयर था एटमोस्फेयर के, वहां पे जो भी एयर था तो क्या हो जा रहा है, गर्म, हीट अप हो जा रहा है, गर्म। अब गर्म होने से क्या हो जाता है, इट विल एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर। तो लाइट होने की वजह से क्या हो रहा है, अब ये ऊपर चला जाएगा, सरफेस से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अब जहाँ पे भी वैक्यूम की ये एयर इज व्हाट, इट इज आल्सो इट इज आल्सो वन काइंड ऑफ फ्लूइड। एयर इज आल्सो अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब वो फ्लो करेगा ही। तो यहाँ पे जो कोल्ड एरिया था, ठीक है, वो क्या है, मॉइस्ट एयर है वहां पे, या ठंडा एयर है, इट विल स्टार्ट टू फ्लो, और वो हेवी होता है, राइट। तो हेवी होने की वजह से क्या आ रहा है, ये इट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम दिस कोल्डर रीजन टू हॉट रीजन। अब यहाँ पे आके फिर से वो इवापोरेट होके फिर ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो जितना इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जितना कंडेंस होगा, मतलब रेनफॉल वहां पे स्टार्ट होना स्टार्ट करेगा, राइट। जितना एयर ऊपर जाएगा तभी तो क्लाउड क्रिएट होगा। अगर कम एयर गया तो उतना रेनफॉल होगा भी नहीं। जितना ज्यादा और जितना स्पीड से जाएगा ना, उतना ज्यादा थंडर स्टॉर्म ये सब होता है, ठीक है। तो ये जा रहा है ऊपर, हीट हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जमा होके हीट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इट इज कंट्रीब्यूटिंग एंड फॉर्मिंग क्लाउड्स अबव दिस सरफेस। तो उसकी वजह से कंडेंसेशन, अब जितना ऊपर जाएगा क्या होगा, एल्टीट्यूड जितना ऊपर जाएगा ठंडा होना स्टार्ट करेगा, तो ठंडा हो, टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी गो अबव। तो जो वार्म एयर था वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट करेगा, तो ठंडा होके फॉर्म करेगा, करके कंडेंस होगा। अब ऊपर तो एटमोस्फेयर में तो लिक्विड रह नहीं सकता ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल नाउ अगेन स्टार्ट टू फॉल। तो यहाँ पे जाके तुम्हारा रेनफॉल स्टार्ट होता है। नाउ दिस टाइप ऑफ रेनफॉल विच इज फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल। क्लियर? तो एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सन हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड हिट्स द एयर कॉजिंग इट टू राइज। इसकी वजह से ये जमीन हीट हो रहा है, फिर उसके सरफेस में जो भी एयर है वो हीट हो रहा है, अब ऊपर राइज हो रहा है, क्लाउड फॉर्म होगा, फिर रेनफॉल होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल। अनदर टाइप ऑफ रेनफॉल इज ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक मतलब है कि टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ओरोग्राफिक मतलब है टोपोग्राफिक बैरियर के ऊपर दिस टाइप ऑफ रेनफॉल्स डिपेंड्स, मतलब इसकी वजह से रेनफॉल होता है। अब टोपोग्राफिक बैरियर मतलब है कि माउंटेन्स, हिल्स, ये वाला जो है, सपोज ये है तुम्हारा टोपोग्राफिक बैरियर, बैरियर के हिसाब से काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओशन है, हीट हो रहा है, सन रेज की वजह से हीट हो रहा है, तो वार्म हो जा रहा है ये वाला यहाँ का एयर। वार्म होने से लाइट होगा, लाइट होने से अगेन इट विल स्टार्ट टू मूव अप। अब अप होते होते जाते जाते क्या हो जा रहा है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है उसको। तो ऑब्स्ट्रक्शन मिलने से क्या हो जा रहा है, अब ये इसके ऊपर ही ऊपर ऊपर होते जाएगा अलोंग द बैरियर। जाते जाते जितना ऊपर जाएगा ये कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऊपर में ऑब्वियसली ठंडा टेम्परेचर इज लेस, सो इट विल स्टार्ट टू कूल एंड फॉर्म कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्म होगा, फिर रेनफॉल होगा, ठीक है। तो उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे भी जाएगा,
दिस इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड, क्योंकि यहाँ से फ्लो होके आ रहा है विंड, दिस इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड, एंड दिस इज कॉल्ड लीवर्ड साइड। ओके, इसको बोलते हैं लीवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड विंडवर्ड। तो हमेशा देखना ऐसे ओरोग्राफिक में विंडवर्ड में ज्यादा इंटेंसिटी से रेनफॉल होता है और लीवर्ड में थोड़ा कम इंटेंसिटी से होता है। ठीक है, नाउ दिस इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओके, अब एक डेमो देखते थे, देखो ऐसे ही मॉइस्ट वार्म एयर फ्रॉम द सी, इट इज राइजिंग अबव, फिर ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म होके वार्म एयर फोर्स टू राइज, कूल कंडेंसेस एंड रेन ऑकर्स। ओके, तो कुछ कुछ हिस्सा यहाँ पे भी बारिश फॉर्म हो रहा है। तो ये सब जनरली होता है कहाँ पे, तुम्हारा हिली एरियाज पे, माउंटेन रीजन, हिमालयस, यहाँ पे ज्यादा होता है और ज्यादा टाइम के लिए होता है। मतलब जैसे कन्वेक्शन कुछ टाइम के लिए, मतलब जितना टाइम के लिए बारिश होता है कन्वेक्शन टाइप का रेनफॉल, लेकिन ओरोग्राफिक क्या होता है उससे बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है। ठीक है, सो दिस इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। और डिटेल्स जो भी है हम दे चुके हैं नोट्स में, वो जो पहले मॉड्यूल 1 बोल के जो था उसमें पूरा डिटेल्स, प्रोसीड्योर, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डायग्राम दिया है, वहाँ पे थ्योरेटिकली सब कुछ लिख दे, तो टैली करके पढ़ते रहना दोनों को। ओके ওকে ম্যাম ওকে ম্যাম। হ্যাঁ, সবকিছু আমি এখানে দিইনি, ওখানে লিখেছি বলে। ঠিক আছে, জি ম্যাম ঠিক। अब लास्ट टाइप है जो कि साइक्लोन, जो अभी आमफान फामफान जो भी है, ठीक है, ये साइक्लोनिक इसको बोलते हैं। और दिस आर द रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये कैसे होता है, इट जनरली ऑकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस है। वो पहले वाला था तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस, सरफेस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से। सेकेंड वाला है तुम्हारा ओरोग्राफिक मतलब टोपोग्राफिक बैरियर की वजह से, एंड दिस इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ओके, अब इसमें भी दो टाइप का होता है, एक होता है कि वार्म फ्रंट टाइप का होता है, एक होता है कोल्ड फ्रंट टाइप का। वार्म फ्रंट में क्या होता है कि ये अगर इस तरफ से वार्म एयर आ रहा है और इस तरफ से कोल्ड एयर आ रहा है, जहाँ पे व्हेन इट मीट्स टुगेदर, व्हेन वार्म एयर एंड कोल्ड एयर मीट्स टुगेदर, उस इलाके में या उस रीजन में एक फ्रंटल लाइन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रंट। तो क्या हो जा रहा है, ये कोल्ड एयर इज डेंसर एंड दिस इज वार्मर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भारी जिनिस आ रहा है, यहाँ से हल्का जिनिस आ रहा है, तो वो टेंडेंसी करेगा उसके ऊपर उठ जाने का, बिकॉज इट इज लाइटर, सो इट विल गो अबव। अब अबव जैसे जाएगा क्या हो जाएगा, देखो एल्टीट्यूड यहाँ पे था, धीरे धीरे वो एल्टीट्यूड राइज हो रहा है, तो राइज होने से टेम्परेचर कम होता जाएगा, फिर क्लाउड फॉर्म होगा, रेनफॉल स्टार्ट्स टू ऑकर। तो ऐसे जब जब मोशन हो रहा है, ऐसे विंड का मोशन हो रहा है, तब जो रेनफॉल क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं वार्म, मतलब साइक्लोनिक फ्रंटल रेनफॉल, उसको बोलते हैं वार्म फ्रंट रेनफॉल। ओके, जैसे कि ये देखो, ये जो वार्म एयर जा रहा है और यहाँ पे कोल्ड एयर है, ठीक है, तो इसके ऊपर हो जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो फ्रंटल लाइन क्रिएट हो जा रहा है, तो यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा इसका ऑपोजिट, पहले जहाँ से वार्म एयर आ रहा था, अब तो सोचो कोल्ड एयर आ रहा है, तो इस तरफ से तुम्हारा वार्म एयर आ रहा है। अब ये ऐसा करके जाएगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब जो भी तुम्हारा फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक फ्रंटल रेनफॉल, कोल्ड फ्रंट, जैसे कि ये। ठीक है, ये वार्म एयर है, कोल्ड एयर है, ऐसे करके ऊपर तो इससे साइक्लोन टाइप का एक क्रिएशन होता है। ओके, तो इसको हम साइक्लोनिक फ्रंटल, फ्रंटल क्यों, ऐसा एक रीजन जनरेट हो रहा है फ्रंट दोनों के बीच में, तो इसलिए इसको फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं। अब दूसरा जो अभी हो रहा है हम लोग के यहाँ पे, टाइफून, हरिकेन जो ऐसे टाइप का बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि ऐसा होता है, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और जनरली ये कहाँ पे होता है, समुद्र मतलब ओशन के ऊपर, जनरली मतलब ओशन से ही जनरेट होता है, और वो वाला फ्रंटल वॉन्टल तुम्हारा लैंड में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत टेम्परेचर गर्म था, तो लो प्रेशर हो जा रहा है, लो प्रेशर की वजह से तुम्हारा एयर ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो ऊपर यहाँ साइड साइड में तुम्हारा हाई प्रेशर से, ये जो हाई प्रेशर से उससे एयर आ रहा है, आके फिर ऐसा करके जनरेट हो रहा है। सो एंड ऊपर से तुम्हारा ऊपर की तरफ से जो कोल्ड है वो अंदर की तरफ यहाँ पे आ रहा है, कोल्ड एयर। तो जो बीच का जो भी है सेंटर, उसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, तो उसकी वजह से तुम्हारा एक साइक्लोनिक क्या बोलते हैं, मोशन जनरेट हो जा रहा है, एंड दिस ऑकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। एक है तुम्हारा कन्वेक्शन, ठीक है, दूसरा है तुम्हारा ओरोग्राफिक, एंड तीसरा इज साइक्लोनिक। साइक्लोनिक में 2 टाइप का होगा, एक ट्रॉपिकल एंड एक इज फ्रंटल। फ्रंटल तुम्हारा हो रहा है लैंड इस सब में, और ये ट्रॉपिकल हो रहा है तुम्हारा समुद्र से।
क्लियर? सो यही सब है तुम्हारा आज का लेसन। बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। नहीं मैम। तो होप आई थिंक ये थोड़ा मतलब पीपीटी कर रहे हैं बहुत, तो करके थोड़ा तुम लोग को समझाने की कोशिश किया है। अगर डाउट है I will upload. I think already it is uploaded. It is posted in the Google Classroom. Okay, you go through the notes, and I will also upload this video also. I will give the YouTube link to you all. Okay. Okay, If you ma'am. have still you have any doubt, then please contact me either through WhatsApp, phone call, any means. Okay, or in Google Classroom itself. Okay, ma'am. ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। Thank you, ma'am. Okay. Thank you, everyone. थैंक यू मैम। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যালো হ্যালো। Yes, ma'am. ম্যাম বলুন। আচ্ছা, কালকে আমার ক্লাসটা 2:30 থেকে আছে। তো আমার একটা ক্লাস আছে, থার্ড ইয়ারেও আছে একটা ক্লাস সেম টাইমে, ঠিক আছে? তো আমি ম্যাম ওদের 2টো থেকে 3টে। 2টো থেকে 3টে যেটা আছে ওই সেম টাইমে আমাকে থার্ড ইয়ারও দিয়েছে, ঠিক আছে? তো ক্লাস করে গেছে। তো আমি 2টো থেকে 3টে করবো না, তারপরে যেটা আছে 3:30 থেকে সেটা আমি তোমাদেরকে করাবো। আগে 2টো থেকে 3টে থার্ড ইয়ার করিয়ে দেবো, তারপর তোমাদের পরে। ওকে Okay, ma'am. ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ ম্যাম। কি গো শাগনিক, হ্যাঁ ম্যাম। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম, পেরেছি ম্যাম। হ্যাঁ, ম্যাম বলছি কি যে বলো। বুকটা আছে না, এনএন বাসাক ফলো করলেই হবে? এনএন বাসাক আর আপনার নোট ফলো করলেই হবে? হ্যাঁ